بلوچستان کو دہشت گردی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ بلوچ علیحدگی پسند تحریک کا انجام بھی کرد تحریک والا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا خطاب، کہا جس جنگ میں بلوچستان کو دھکیلا گیا وہ لا حاصل ہے۔ سعید بادینی نے بتایا کہ فلاں جگہ پر انوار الحق کاکڑ کو قتل کرنے کی کوشش کی، یہ بھی بتایا کہ کس طرح وکلا کا قتل کیا گیا۔ اتنے دہشت گرد فورسز نے نہیں مارے جتنے بشیر زیب نے حملوں میں مروا دیے۔ آخر ہم کب تک نوجوانوں کو آگ اور خون کے دریا میں دھکیلیں گے؟ چین کی جانب سے بھارت کو بڑا دھچکا۔ چین نے بھارت کے زیر تسلط اروناچل پردیش کو زنگنان کا نام دے دیا۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق زنگنان تاریخی، جغرافیائی اور انتظامی اعتبار سے چین کا حصہ ہے۔ اپنے علاقوں کا نام تبدیل کرنا چین کی خود مختاری کے دائرے میں آتا ہے۔ آپریشن بنیانم مرصوص نے قوم کو متحد کیا۔ اللہ کی مدد سے بہادر افواج نے دشمن کو دھول چٹائی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا گندم پروگرام کے تحت ٹریکٹر تقسیم کرنے کی تقریب، کہا اللہ کی مدد کبھی بدنیتوں پر نہیں آتی۔ نفرت کی سیاست ختم ہو چکی، ملک ترقی کر رہا ہے۔ وہ کہتے تھے پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، آج دنیا کے اخبار اور جریدے پاکستانی معیشت کو معجزہ قرار دے رہے ہیں۔ بھارت اور اسرائیل ایک ہیں، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس، کہا بھارت نے پاکستان میں مسجدوں اور شہریوں پر حملے کیے، جب پاکستان نے جواب دیا تو یہ امریکہ کے پاؤں پڑ گیا۔ بھارت سے سب سے پہلے کشمیر کے مسئلے پر بات چیت ہوگی، کشمیریوں کو حق خود ارادیت کا پورا حق ملنا چاہیے۔ آپریشن بنیانم مرصوص میں فتح 1 اور فتح 2 میزائلوں سے بھارت کی پٹھان کوٹ ایئر بیس کو نشانہ بنانے کی ویڈیو منظر عام پر۔ پاک فوج کے فتح 1 اور 2 میزائل سسٹم نے بھارت کی اہم تنصیبات کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ 10 مئی کا دن بھارتی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ریاستی اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے کا الزام، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے 5 ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیے۔ مقدمے میں احمد نورانی، عادل راجہ، معید پیرزادہ، محمد عمر اور نذیر بٹ شامل۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے مطابق ملزمان نے پاک بھارت کشیدگی کے دوران جھوٹا اور اشتعال انگیز مواد شیئر کیا تھا۔ اور سورج آگ برسانے لگا، محکمہ موسمیات نے شدید گرمی کے لہر کا الرٹ جاری کر دیا۔ کراچی میں اگلے 5 روز تک ہیٹ ویو کا بھی امکان۔ 19 مئی تک ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم شدید گرم رہے گا۔ سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں درجہ حرارت 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان۔ 19 مئی سے مغربی ہواؤں کا سلسلہ بالائی علاقوں میں داخل ہوگا۔ 20 مئی کو اسلام آباد، کشمیر، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں بارش اور یالہ باری متوقع۔ بھارت سے 1971 کا بدلہ لے لیا، مسٹر مودی دوبارہ ایڈونچر کا سوچا تو منہ کی کھاؤ گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بھارتی وزیر اعظم کو وارننگ، پسرور کینٹ میں خطاب کرتے ہوئے 1960 کے سنتاس معاہدے سے متعلق سوچنا بھی مت۔ پانی ہماری ریڈ لائن ہے، خون اور پانی اکٹھا نہیں بہے گا۔ بھارت نے رات میں حملہ کیا جسے ہماری ایئر فورس نے چاند رات میں تبدیل کر دیا۔ بھارت کا خطے میں تھانے داری کا بت باش ہو گیا۔ پاک افواج کے آگے دشمن کا گھمنڈ اور غرور خاک میں ملا دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پوچھا، 1971 میں مکتی بانی کو تربیت دے کر کس نے بھیجا؟ کلبھوشن کون ہے؟ وہ بلوچستان میں کہاں سے نمودار ہوا؟ حالیہ جعفر ایکسپریس سانحے کے تانے بانے آپ سے ملتے ہیں، امن کے دائی ہیں، ہماری امن کی کوشش کو کبھی کمزوری نہ سمجھنا۔ قومی قیادت میدان جنگ کے شاہ سواروں کے ساتھ وزیر اعظم اور آرمی چیف کا آپریشن بنیانم مرصوص کی فرنٹ لائنز کا دورہ۔ سپہ سالار نے وزیر اعظم شہباز شریف کو بٹھا کر گاڑی ڈرائیو کی، آپریشن میں شریک افسروں اور جوانوں سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا پسرور کینٹ سیالکوٹ کا دورہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف، ایئر چیف ظہیر احمد بابر ہمراہ وفاقی وزراء احسن اقبال، عطا تارڑ، اعلیٰ سول اور عسکری حکام کی بھی شرکت۔
पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दो टोक मौक़िफ़। कहा, पूरी कौम किसी भी जारियत से निपटने के लिए मुत्तहिद, पुरअज़्म और होशियार है। पाकिस्तान हर किस्म की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। हमें अपने बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर फख्र है। पूरी कौम अपने सिपाहियों शहरियों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। पाकिस्तानी कौम ने दुश्मन की जारियत का डट कर मुकाबला किया। भारत का रवैया जारहाना, शिद्दत पसंदाना और इलाकाई अमन के लिए खतरा है। हिंदुत्व नजरिए से पूरे खित्ते की सलामती को शदीद खतरात हैं। सदर मुमलिकत का CMH रावलपिंडी का दौरा, पाक फौज के जख्मी जवानों और मुतासरा शहरियों की अयादत। मोदी का सरकारी सरमाया खत्म हो गया। भुखलाहट में मोदी कोई भी हरकत कर सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत की जानिब से दोबारा जारहियत के खदशे का इजहार। खबरदार भी कर दिया, कहा भारत ने कोई हरकत की तो पाकिस्तान भी भरपूर जवाब देगा। पाकिस्तान ने भारत को जवाब दिया, इसमें दोस्त मुल्कों की खामोश रजामंदी शामिल थी। सीज़ फायर के लिए हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं था। दोस्त ममालिक जंगबंदी के हक में थे, इसलिए हमने सीज़ फायर किया। पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत के बाद चीन की तरफ से भारत को बड़ा धचका। चीन ने भारत के ज़ेरे तसल्लुत अरुणाचल प्रदेश को ज़ंगनान का नाम दे दिया। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि अपने इलाकों का नाम तब्दील करना चीन की खुद मुख्तारी के दायरे में आता है। ज़ंगनान तारीखी, जगराफियाई और इंतज़ामी एतबार से चीन का हिस्सा है। भारत ज़ंगनान को अरुणाचल प्रदेश का नाम देकर अपना हिस्सा करार देता है। चीन ज़ंगनान के सारे इलाके को जनूबी तिब्बत का इलाका तस्वुर करता है। दोनों ममालिक के दरमियान पहले ही कशीदगी पाई जाती है। सिंदास मुआहिदे में मुअत्तली की गुंजाइश मौजूद नहीं। मुआहिदा मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल और फरीकैन पर लाजिम है। पाकिस्तान ने सिंदास मुआहिदे पर भारत के खत का जवाब दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान कहते हैं, सिंदास मुआहिदा एक बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारी है और भारत को इसकी पासदारी करना होगी। मुआहिदे की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल होगी। सदर वर्ल्ड बैंक अजय बंगा ने कहा, सिंदास मुआहिदे पर भारतीय बयानिया मुस्तरद कर दिया। कहा कि ये मुआहिदा सिर्फ पाकिस्तान और भारत की रजामंदी से ख़त्म या तब्दील हो सकता है। भारत का सिंदास मुआहिदे को मुअत्तल करना दुरुस्त नहीं। मुआहिदे में ऐसी कोई शक नहीं। पाकिस्तान के लिए आलमी बरादरी से बड़ी हिमायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते में कशीदगी कम करने और अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है, ताहम अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। सेक्रेटरी जनरल का सीज़ फायर का खैर मकदम। कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के दरमियान भी टेलीफोनिक रब्ता। अफ़हाम व तफ़हीम की फ़ज़ा को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान की हिमायत। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया, पाकिस्तान सिंदास मुआहिदे को कभी चैलेंज नहीं होने देगा। तुर्क सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अजीज़ तरीन भाई करार दे दिया। एक्स पर मोहब्बत भरे पैगाम में ट्वीट के जवाब में लिखा, मेरे अजीज़ भाई, तुर्किया और पाकिस्तान जैसी दोस्ती की मिसाल तारीख में कम मिलती है। तुर्किया पाकिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को इंतहाई अहमियत देता है। तुर्किया माज़ी की तरह मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। तुर्क सदर ने अपने पैगाम पर पाक तुर्क दोस्ती जिंदाबाद का नारा भी लिखा। भारत का गुरूर खाक में मिलाने वाली पाक फ़ज़ाइया को मुनफरिद अंदाज में खिराज तहसीन पेश। दरबार सुल्तान बाहू पर राफेल को तबाह और भारत को शर्मसार करने वाले तैयारे जेट-एन-सी का इंसानी मॉडल बनाया गया। शुरा के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। चीन, तुर्किया और आज़रबाईजान से भी इज़हार तशक्कुर। मुस्लिम इंस्टीट्यूट के चेयरमैन साहिबजादा सुल्तान अहमद अली ने कहा, दुश्मन मोदी को वाज़ेह पैगाम है कि हम दिफाए वतन में सीसा पलाई दीवार की तरह मुत्तहिद हैं। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर सिंध भर में आज योम फतह और योम तशक्कुर। सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी की जानिब से पाक फौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए कराची समेत सूबे भर में रैलियों और तकरीबात का एहतमाम। गवर्नर सिंध कामरान खान टसोरी ने मार्का हक के शहदा की यादगार का संग बुनियाद रख दिया। कहा, बुनियानुम मरसूस का मार्का हक दुश्मन कभी फरामोश नहीं करेगा। कराची में सीवीयू से रैली निकाली जाएगी। भारत के खिलाफ फतह की खुशी में ठट्टा में रैली की क़यादत पीपल्स पार्टी सिंध के निसार अहमद खोड़ो करेंगे।
मार्का हक में फतह के बाद पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर में रैलियां। हैदराबाद में रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन की क़यादत में रैली, 200 फुट तवील कौमी परचम लहराया गया। शर्जील मेमन का कहना था कि भारत की 10 नस्लें भी पाकिस्तान से लड़ने के लिए 100 बार सोचेंगी। लाहौर में गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल नंबर 2 सिविल लाइंस के तलबा की रैली, पाक फौज के हक में नारे। भावलपुर के शहरी फौजी जवानों के इस्तकबाल के लिए सड़कों पर उमड़ आए, जवानों पर गुलपाशी की गई। पेशावर के 120 साला फैज़ मोहम्मद उर्फ खान बाबा ने पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाकर भारत की शिकस्त पर खुशी का इजहार किया। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह पर दुनिया भर में जश्न का सिलसिला भी जारी। ब्रसल्स में पाकिस्तानी कम्युनिटी का अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती। यूरोपीय पार्लियामेंट के सामने पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की जानिब से पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरा। पाकिस्तान जिंदाबाद और अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे लगाकर जज्बात का इजहार किया। रियासती इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे का इल्जाम। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 5 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। मुकदमे में अहमद नूरानी, आदिल राजा, मोईद पीरजादा, मोहम्मद उमर और नज़ीर भट्ट शामिल। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुताबिक मुल्जिमान ने पाक भारत कशीदगी के दौरान झूठा और इश्तियाल अंगेज मवाद शेयर किया था। ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने कौम को मुत्तहिद किया। अल्लाह की मदद से बहादुर अफवाज ने दुश्मन को धूल चटाई। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का ग्रीन ट्रैक्टर तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, अल्लाह की मदद कभी बदनीयतों पर नहीं आती। नफरत की सियासत ख़त्म हो चुकी, मुल्क तरक्की कर रहा है। आज दुनिया के अखबार और जरीदे पाकिस्तानी मईशत को मोजज़ा करार दे रहे हैं। मजीद कहा, किसानों को फ़ी एकड़ 5,000 रुपये सब्सिडी दी जा रही है। किसानों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। दूसरी जानिब लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई का पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराने का हुक्म दे दिया। डीजल और पेट्रोल मजीद सस्ता होने का इम्कान। अगले 16 रोज़ के लिए डीजल 6 रुपये 80 पैसे, पेट्रोल 2 रुपये 95 पैसे फी लीटर सस्ता होने का इम्कान है। ओगरा की जानिब से कीमतों के तयन की समरी आज हुकूमत को भिजवाई जाएगी। वजारत ख़जाना वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद कीमतों से मुताल्लिक ऐलान करेंगे। सूरज का मिजाज बरहम, मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर। दर्जा हरारत 6 डिग्री तक बढ़ने का इम्कान। कराची में अगले 5 रोज तक हीट वेव का भी इम्कान। महकमा मौसमियात ने बच्चों और बुजुर्ग अफराद को बगैर ज़रूरत घर से बाहर न निकलने की हिदायत कर दी। पंजाब और बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में तेज हवाएं चलने का इम्कान। गुंडागर्दी के आगे नहीं झुकेंगे। ईरानी सदर का नई पाबंदियों पर अमरीकी हम मनसब को जवाब। अपने बयान में मसूद पज़ेशिकियान ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा, हमारे लिए शहादत की मौत बिस्तर पर मरने से ज्यादा बाइस फ़ख्र है। अमरीका ने गुज़िश्ता रोज ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर नई पाबंदियां लगा दी थी। बांग्लादेश के मेहदी हसन आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ करार। ऑलराउंडर को अप्रैल की कारकर्दगी की बुनियाद पर एजाज से नवाजा गया। जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मोजा रब्बानी और न्यूजीलैंड के बेन सीयर्स भी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजद थे।